حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جھلکیاں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ یہ سن کر اپنے دلوں میں ایمان میں حلاوت پائیں گے کہ بنی ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہاشم کے پوتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی زندگی کس طرح سے مکہ مکرمہ میں ابھرتی ہوئی جوانی کے ساتھ اٹھی۔ پیدا ہوئے تو اس صوبیہ نے، جس داعیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، امیر حمزہ کو بھی اسی نے دودھ پلایا۔ میرے دوستوں، کتنا خوبصورت تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا کا۔ ایک طرف چچا ہیں اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی بن رہے ہیں۔ اس طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں، دیگر رشتے بھی قربت کے، یہ تھوڑا رشتہ نہیں قربت کا کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس طرح جوانی میں بڑے نڈر تھے، اپنے سینے کو ہمیشہ کھلا رکھتے تھے، قداور تھے، جنگجو تھے، تیر اندوز تھے، بڑے اعلیٰ شکاری تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جوانی میں مکہ مکرمہ میں حضرت امیر حمزہ کے دوست ڈھونڈتے رہتے تھے کہ امیر حمزہ کہاں ہیں۔ اپنی سواری پہ بیٹھ کر تیر کمان کے ساتھ شکار کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، درندوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس طرح سے راتوں جنگلوں میں، رات جنگل میں گزارتے تھے اور کئی کئی دن کا کھانا لے کر جاتے تھے۔ ایک جماعت بنا لی تھی اور مشہور ہو گئے تھے کہ مکہ مکرمہ میں تیر اندوزی میں اور شکار میں اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے تو وہ امیر حمزہ سے بڑھ کر نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قداور بھی تھے اور بنو ہاشم میں جتنے بھی سب خوبصورت تھے اپنی اپنی جگہ پر، کیونکہ یہ ساری خوبصورتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل حضرت اسماعیل کی پشت سے اس طرح سے منتقل ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اپنی چہرے میں اتنا خوبصورت تھا کہ کسی کو سورج کے ساتھ، کسی کو چاند کے ساتھ مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، میں تاریخ کے ان اوراق کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو کہ بنو ہاشم میں مقام حاصل کرنے کے باوجود کس طرح سے اجاگر ہوئی کہ جب شکار کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے، عمر میں بھی آپس میں بہت قربت تھی۔ 2 سال صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ اور جب شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو انہیں ایک راستے میں لونڈی نے یہ بتایا کہ آج امیر حمزہ اگر تو ہوتا تو جس منظر کو میں دیکھ چکی ہوں تو کبھی برداشت نہ کرتا۔ اس نے کہا، حضرت امیر حمزہ نے جواب میں پوچھا وہ کون سا منظر ہے؟ کہا تیرے بھتیجے کو آج صرف گالیاں نہیں دی گئیں بلکہ ابو جہل نے ان کے سر پر گندگی بھی پھینکی ہے، ان کو اور مختلف طرح سے اذیت دی ہے۔ ابھی اسی طرح سے اس بات کو ذہن میں لیا تھا، اپنے ہاتھ میں تیر کمان تھا، گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی ہمشیرہ محترم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ ہیں، انہوں نے کہا حمزہ اے میرے بھائی، آج میرے بھتیجے کو کس طرح سے اذیت دی گئی ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تنہا اس وقت
इस राय हक में मुकाबला फरमा रहे हैं। आप अगर खून में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं और मेरे भाई हैं, तो जाओ अबू जहल से इसका बदला चुकाओ। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी तरह से अपने हाथ में जो तीर लिए हुए और शिकार का जो आपने अपने कमर बंद किया हुआ था, जो जिस तरह से कमर बंद होकर शिकारी होते हैं, उसी हालत में गए। अबू जहल को वहां मस्जिद हराम में अपनी एक मजलिस में देखा कि जो उस वक्त मजलिस में बैठकर ठट्टा और मजाक कर रहा था, अमीर हमजा उसके करीब जाकर अपने उस कमान और तीर से उसके सर के ऊपर ऐसी चोट मारते हैं कि सबसे पहला खून अबू जहल का मस्जिद हराम में बहाने वाले वो सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। कहा कि तूने मेरे भतीजे के साथ ऐसा किया है, सुन लो। उसने कहा मैं बनु हाशिम का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और हाशिम का पोता हूं। खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने मेरी भतीजे की तरफ गलत निगाह से भी देखा तो उसकी आंख को भी निकाल दूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह से कौम इकट्ठी हो गई और अबू जहल की कौम ने कहा हम बनी हाशिम से लड़ाई करते हैं। अब अबू जहल जानता था कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जो कि अमीर हमजा मुकाबले में आ गया है, यहां अब जंग रसूलुल्लाह से नहीं होगी, यहां दो कबीलों की जंग हो जाएगी। और उसने कहा खबरदार, इसे मत कुछ कहो, जो मैं कर चुका हूं उसके बदले में उसने ये किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और दार अरकम में ये 6ठा साल नबूवत का था। दार अरकम में दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद जब दरवाजा खुलता है, आंखों में सुर्खी होती है, अपने भतीजे को प्यार करते हैं और पूछते हैं या रसूलल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। कहने लगे क्या है मेरे भतीजे, मैं तेरा बदला चुका कर आया हूं, तो अबू जहल के सर पर चोट मार कर आया हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद फरमाया, ऐ चचा, मेरी खुशी ये होगी कि जिस तरह तूने दुनिया में मेरा बदला चुकाया है, मैं तेरा बदला आखिरत में चुका दूं। कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी, ऐ मेरे चचा, तूने बेशक मेरा बदला उतारा है, लेकिन इस बदले का बदला जो अल्लाह देगा वो कलमे के साथ मशरूत है, वो ईमान के साथ मशरूत है। किसी काफिर का मेरी तरफ से बदला चुकाया जाना वो कबूल नहीं होगा जब तक के ईमान नहीं लाएगा। अमीर हमजा के जहन में भतीजे की ये बात यहां बैठ गई। कहा मुझे वक्त दीजिए। घर में गए, सारी रात सोचते रहे क्या करूं। मेरे दोस्तों, दिल में इत्मीनान आया, अल्लाह की तरफ से हिदायत का दरवाजा खुला। आए दारे अरकम ने, और वो आना ऐसा था कि जब दस्ते अक़दस नबी पर अपने भतीजे के हाथ पर यूं कहकर कहा कि मेरा दीन वो है जो मेरे भतीजे का दीन है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस ऐलान के बाद तौहीद पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करते हैं, रिसालत पर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करते हैं। और दारे अरकम ने जहां हजरत अमीर हमजा ईमान लाए थे, एक वो वक्त था कि जब इसके बाद आने वाला एक जर्नैल आया था और उसने इस्लाम को कबूल किया था। उस वक्त अमीर हमजा मौजूद थे। एक वो वक्त था और एक अमीर हमजा का वक्त था कि जब सरकार ने अमीर हमजा के इस्लाम कलमे को सुना और सरकार ने जिस वक्त हजरत अमीर उमर के कलमे को सुना कि दोनों ईमान लाए हैं, तो सबसे पहले अपनी जुबान से, अपने उस पुरआज़म जुबान से, पुरगूंज जुबान से बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तकबीर की आवाज बुलंद हुई, मक्का में तहलका मच गया कि आज कोई बड़ा जर्नैल इस्लाम ला चुका है। अबू जहल फिर कांप भी रहा था। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर मस्जिद हराम में जाकर ये ऐलान करते हैं कि मेरा इस्लाम मख्फी इस्लाम नहीं है, मैं छुपा के इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा। सुन लो मेरे इस मक्का के रहने वाले लोगों, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा
हाशिम का पोता अमीर हमजा, जिसका बाप तुम्हें जमजम पिलाया करता था, आज ये ऐलान कर रहा है कि अपने भतीजे मोहम्मद के दीन इस्लाम को कबूल कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां जब ऐलान कर दिया, उसके बाद वो अम्मे रसूल जो चचा थे अब चौकीदार बन गए। दार अरकम ने रात भर हथियार लेकर खड़े रहते थे। मेरे दोस्तों, मोहब्बत के दावेदारों, तुम चचा रसूल पर गौर करो। इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहले जिनका शार शिकार था, अब उस तीर कमान को इस्लाम का सिपाही बनकर दार अरकम की हिफाजत के लिए पैरादारी में अपने इस्तेमाल में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी पैरादारी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए थे तो 40 सहाबा में से किसी को ये इजाजत नहीं होती थी कि आने वाली दस्तक में दरवाजा कोई खोले, जब तक अमीर हमजा सुराख से नहीं देख लेते थे दरवाजे से कि कौन आया है। देखा हथियार लेकर उमर आए हैं, फौरन उसी वक्त ललकार कर कहा कि तेरी तलवार से तेरी गर्दन को मैं काट दूंगा अगर तू गलत अकीदे के साथ आया है। अमीर हमजा की इस बात को सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, मालका या मालका या अमीर हमजा, ए हमजा क्या बात है। हजरत हमजा जो सुराख में जिसको देख चुके थे, कहा उमर हथियार लेकर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर को आने दो, ये खुद नहीं आ रहा बल्कि मेरी दुआ की कबूलियत के साथ आसमान के फैसले से आ रहा है। मेरे दोस्तों, फिर वो वक्त था उमर फारूक ईमान लाए तो पहली अल्लाह अकबर तकबीर किसने कही? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी तकबीर अमीर हमजा ने कही। फिर 40 सहाबा ने कहा तकबीर के साथ, अल्लाहु अकबर। तुम क्या समझते हो तकबीर को? इस तकबीर ने मक्का की दरो दीवार को हिला दिया था। इस तकबीर ने, तुम तकबीर का यौम मनाते हो, क्या यौम तकबीर का मनाते हो? इन हथियारों को जब तक कुफ्र के खिलाफ इस्तेमाल में नहीं लाओगे, तुम्हारी ये यौम तकबीर कोई तकबीर नहीं है। तकबीर इसका नाम है कि मैदान जिहाद में कूद कर ऐलान करो कि हमारी कुव्वत और ताकत अल्लाह की तरफ से है और ये फैसला हो चुका है कि मुसलमान अपनी ताकत का इस्तेमाल कुफ्र के खिलाफ जरूर करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे अर्ज करूं, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शैब अबी तालिब में कैद और बंद की सोबतें इख्तियार कर रहे हैं। वो सीना खोल कर चलने वाले नौजवान, वो तीरंदाज और जंगजू नौजवान अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मजलूमियत की हालत में है। पूरा मक्का मुखालिफ हो चुका है, कबीला मुखालिफ हो चुका है, अपना सगा भाई, अपना भाई अबू लहब मुखालिफ हो चुका है। इस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तारीख के कौन कौन से और आपको खोल कर बताऊं। इस दौरान में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ मेरे प्यारे रसूल, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, जो जिब्रील आपके पास आता है, मैं चाहता हूं कि मुझे भी उसकी जियारत करा दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अमीर हमजा, ऐ मेरे चचा, इस दुनिया में तू जिब्रील को नहीं देख सकेगा, तू ताब नहीं लाएगा। अच्छा तू चाहता है तो तुझे एक झलकी दिखा दूंगा। जिब्रील आए, सलाम लेकर आए, अल्लाह की तरफ से सलाम लेकर आए कि हमजा चाहते हैं कि मुझे देखें। अपनी असल शक्ल में वारिद हो गए। हमजा ने सिर्फ लटकते हुए सिर्फ पांव को और कपड़ों को देखा, बेहोश हो गए। जब होश आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, दुनिया में तो इस आंख से नहीं देख रहे हो, जब इस दुनिया से जाओगे तो इनको इस्तकबाल में पाओगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त हिजरत फरमाते हैं और मदीना में पहुंचते हैं, फिर इस्तकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करते हैं। उसके बाद पहले साल हिजरत में यह ऐलान होता है कि काफिरों के खिलाफ जिहाद कीजिए। सिर्फ जिहाद का हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, इनको कत्ल करो। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं और नोट कर लो इस बात को। तारीख के हवाले से
सीरत के हवाले से और पूरे वसूख से बता रहा हूं कि पहला ऐलान जिहाद का, क़िताल का जब आसमान से नाज़िल हुआ, उसमें जब पहला लश्कर इस्लाम का बना, उस लश्कर का नाम सरिया अमीर हमजा है। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए थे। सरिया उसे कहते हैं जिसमें रिसालत इमाम सल्लम ने शिरकत न की हो। गज़वा उसे कहते हैं जहां रसूलुल्लाह सल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो। सराय की तादाद 56 है। हयात अक़दस नबी में जो सराय हुए हैं, 10 साल की मुख्तसर मुद्दत के अंदर जो काफिरों के साथ क़िताल और जंग और जिदाल हुआ है, जिसको जिहाद कहते हैं, हथियार के साथ होने वाला जिहाद, तलवार उठाकर होने वाला जिहाद, नेज़ा उठाकर होने वाला जिहाद, तीर उठाकर होने वाला जिहाद, सवारियों पे बैठकर होने वाला जिहाद, ऐलान के साथ होने वाला जिहाद, और ऐसा जिहाद जिसमें तकबीर की गूंज के साथ होने वाला जिहाद, जिसमें सहाबा ने सबसे पहले अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए अगर उस जिहाद में शिरकत की, तो वो हुक्म जो पहला हुआ था, उस पहले हुक्म में अलंबरदार झंडा जिसे दिया गया, सिपा सलार जिसे बनाया गया, वो अमीर हमजा थे जिनके हाथ में इस्लाम का झंडा था। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 30 आदमियों के साथ जो सवारियों पर थे, ये पहला काफिला है जो हिजरत के बाद पहले साल में आए। आराम नहीं किया, जो ही हुक्म हुआ हिजरत के पहले साल होने वाला ये सरिया है। उठाओ तुम आप सीरत की किताबों को, पहला सरिया अमीर हमजा है। उसके बाद फिर एक गज़वा होता है, जिस गज़वे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिरकत फरमाते हैं, वो गज़वा अबवा कहलाता है। उसमें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमारत में आप थे जरनैल आदम, मगर झंडा हजरत अमीर हमजा को अता फरमाया था। यह दूसरा मौका था। फिर तीसरे मौके पर ज़ुरैशिरा में भी, बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हिजरत का दूसरा साल हुआ और ग़ज़वतुल बदर अल कुबरा हुआ, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जेश बनाई थी, उस जेश में अमीर हमजा क़यादत भी फरमा रहे थे। और किस लश्कर की क़यादत फरमा रहे थे? जिस लश्कर में सहाबा वो थे कि जिनके जिस्मों पर ज़िर्रा नहीं था। अमीर हमजा ने फरमाया, मुझे वो लोग दो जिनका सीना शहादत से सरशार हो, मुझे वो लोग दो जो अब ज़िर्रा पहनकर नहीं, शहादत की तड़प के साथ आए। मेरे दोस्तों, जब मैदान ग़ज़वा बदर में वहां पर कुरैश मक्का ने अपने 3 सरदारों को पेश किया, वलीद उठा, शिबा आया, उत्बा आया, ये 3 काफिरों के जरनैल आए, मुर्तद काफिर आए। इन्होंने कहा हमारे मुकाबले में किसी को भेजिए। उसमें अंसार साहबा इकराम में माज उठे, मऊद उठे, अब्दुल्ला बिन रवाहा उठे। हजूर ने जब इन तीनों को पेश कर दिया, क्योंकि अंसार ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, अब इस्लाम के लिए, दीन के लिए जो वादा हमने किया था, पहले कुर्बानी हम देंगे। कौन देंगे? जो ही वो 3 आए तो उस तरफ से कौन था? शीबा था, वलीद था, उत्बा था, कुरैशी थे, बहुत बड़े बड़े अपने अपने कौमों के सरदार थे। उन्होंने कहा तुमने इन किसानों को हमारे सामने खड़ा कर दिया, ये मदीने के किसान हैं, ये खजूरों के बागों वाले हैं, हमारे मुकाबले में हमारी तरह का कदावर जरनैल पेश करो। हज़ूर ने फरमाया हमजा उठो, अली उठो, उबैदा उठो। ये 3 ऐसे शेर उठे और तीनों का अंदाज क्या था? अमीर हमजा जब उठे तो उन्होंने अपनी दस्तार को जब सर पे बांधा तो अपने साथ एक शुतर मूर्ख का पर लाए थे, उसकी तुलगी बनाई, तुर्रा बनाया और निकल कर कहा कौन है मेरे मुकाबले में? उत्बा ने कहा मैं हूं, शीबा ने कहा मैं भी हूं, इस तरह से वलीद ने कहा मैं भी हूं। हजरत अली ने ललकारा, अमीर हमजा ने ललकारा, उबैदा ने ललकारा, तीनों ने ललकारा। एक एक का मुकाबला हुआ, अमीर हमजा ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। इस तरह से हजरत अली ने अपने मुकाबिल को जहन्नम रसीद कर दिया। उबैदा बूढ़े थे, उनके मुकाबले में वलीद था, उसने उनके ऊपर जब काबू पाया, हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, उसका सर कलम कर दिया। 1000 काफिरों का लश्कर है, दूसरी तरफ 313 हैं। पहली ही मुबादरत में, मुबादरत कहते हैं कि एक के मुकाबले में एक,
یہ جنگ تھی، اس طرح کی غزوے ہوا کرتے تھے۔ موت سے ڈرنے والے مسلمانوں، شہادت سے فرار کرنے والے مسلمانوں، سنو، حضور کی آنکھیں خون کو بہتا دیکھ رہی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 1000 نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ رقص و سرور میں عورتیں بھی ساتھ تھیں، دف بجا رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تمہارے لیے گیت گا رہی ہیں، وہاں امیر حمزہ نے بھی گیت گایا اور کہا، اے اونٹنی کا دودھ پینے والوں، سن لو، میں اس کا بیٹا ہوں جو تمہیں زمزم پلایا کرتے تھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، سن لو، اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، مقابلے میں آؤ تو پھر یہ ذہن میں لے کر آؤ کہ تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرو گے، تم اپنی بچیوں کو یتیم کرو گے، اپنے بیٹوں کو یتیم کر دو گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے اس منظر کو بتاؤں؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت علی مرتضی اور جیت صحابہ سارے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ جب مبادرت ہو گئی تو اس میں پھر اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ سر پر تلغی لگانے والے شتر مرغ کا نشان واضح کر کے بتا رہے تھے کہ میں چھپ نہیں رہا، مجھے جہاں دیکھو امیر حمزہ تمہیں نظر آئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس غزوۃ البدر میں صحابہ کرام کو فتح ہوئی اور 70 کفار مکہ جہنم رسید ہوئے، ابو جہل جہنم رسید ہوا، عتبہ جہنم رسید ہوا، ولید جہنم رسید ہوا، شیبہ جہنم رسید ہوا، عدی جہنم رسید ہوا، بڑے بڑے اور جو ہے ایسے قسم کے مرتد قسم کے اور ایسے ملعون قسم کے لوگ جہنم رسید ہوئے، جن میں وہ شخص بھی جس نے اونٹ کی گندگی کی اوجھ رسول اللہ کے سر پر ڈال دی تھی، جہنم رسید ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب احد کا میدان آیا، ان لوگوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں کہ بدر کے میدان میں کس نے اپنے سر پر تلخی لگائی ہوئی تھی؟ کہا امیر حمزہ تھے۔ ساری قوم نے یہ قسم کھائی تھی کہ آنے والے جنگ میں ہم امیر حمزہ کا بدلہ کر لیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر احد کے میدان میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کو بھی، لیکن اتنا عرض کرتا چلا جاؤں۔ میرے دوستوں، احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سرفرازی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے میدان میں اترے تھے، لیکن میرے دوستوں، جب عزیمت کا باب کھلا، واقعہ بڑا لمبا ہے، شہیدوں کی لاشیں مسلمانوں کی بکھر گئیں، کوئی کہاں پڑی ہے، کوئی کہاں پڑی ہے، بکھری ہوئی جسم پڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 7 شوال کو ہونے والے غزوے میں جو 3 ہجرت میں ہوا تھا، ہجرت کے تیسرے سال ہوا تھا، اس میں جب جنگ ہو گئی اور وہ کافر جو 3000 تھے واپس چلے گئے، آپ نے ان لاشوں کو نشاندہی کے لیے خود میدان میں اترے، ایک ایک لاش کو دیکھ رہے ہیں، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، کسی کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مسلح اور طرح کا ہے، یہاں قیمہ اور طرح سے بنا ہے، صرف اعضاء نہیں کٹے ہوئے، پیٹ چاک ہے، دل غائب ہے، جگر غائب ہے، میرے دوستوں انگلیاں غائب ہیں، آنکھیں غائب ہیں، کان غائب ہیں، پاؤں غائب ہیں۔ ایسی حالت میں اس آنکھ اور اپنی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں یہ کون ہے، دیکھا میرا چچا ہے، کہا اللہ تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حالت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کی لاش کو ایسے چھوڑ کر چلا جاؤں، جنگل کے درندے اس کو کھائیں اور میں یہ فخر کر سکوں کہ قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ باری عز و جل اسلام کے لیے میرے خاندان میں میرے چچا نے ایسی قربانی پیش کی۔ اے قربانی سے فرار کرنے والوں، سنو اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دوران میں دیکھا ایک عورت دوڑے دوڑے آ رہی ہے، زبیر سے پوچھا کون ہے، اس نے کہا والدہ آ رہی ہیں۔ کہا والدہ کو روک دو، کیونکہ زبیر کون تھے؟ حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ صفیہ کون تھی؟
रसूलुल्लाह की फूफी थी। सफिया कौन थी? अमीर हमजा की बहन थी। कहा रोक दो उसको, ये औरत है। कहीं भाई की इस मुसले को देखकर, जिसमें जिस्म टुकड़े हो चुका है, जिसमें उनके जिस्म की आज़ा को उन्होंने हार बनाकर लेकर चले गए हैं, कहां फेंका है? फिर ढूंढा था तो मिल भी गए थे आधा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजूर ने रोका, इस औरत को मत आने दो, मेरी फूफी को ना आने दो। उस फूफी ने जिस वक्त दूर से ये बात सुनी तो दूर से ये कह रही है कि मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे भतीजे, मैं मातम करने नहीं आ रही, बल्कि मैं इस नीयत से आ रही हूं कि मेरे भाई ने इस्लाम के लिए ऐसी कुर्बानी पेश की है। मैं तो इस नीयत के साथ घर से निकली थी, या तो बेटे को दफनाऊंगी या भाई को दफनाऊंगी। जुबैर ने शहादत उसमें हासिल नहीं की, भाई ने कर ली। कहा मैं कफन लेकर आई हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मंजर होगा उस वक्त कि एक औरत ये ऐलान कर रही है कि इस्लाम के और दीन के लिए मैं अपने भाई की इस कुर्बानी पर फख्र करती हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा की लाश मुबारक को अपने सामने रख दिया। 70 सहाबा इकराम की लाशें थी। पहले जनाजा अमीर हमजा पर पड़ा, फिर एक एक का जनाजा रखा जाता था। बार बार अमीर हमजा की वहां जगह रही और सहाबा के जनाजे आगे ऐसे बदलते चले गए, रखते चले गए। इस तरह से आखिरी जनाजा था, उसमें 70 के 70 सामने थे। अमीर हमजा को यह शहादत हुई कि 70 बार रसूलुल्लाह ने उनका जनाजा पढ़ा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां दफना दिया, अब वाकया बहुत लंबा है, मुख्तसरन करता हूं, फिर मदीने में तशरीफ लाए। उसके बाद एक दिन सुबह की नमाज के बाद बड़ा हशाश बशाश चेहरा है, खुशी महक रही है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपकी मुस्कुराहट से रोशनी फैल जाती है, आपकी मुस्कुराहट से जमाल से हमारे दिल मुनव्वर हो जाते हैं। हज़रत ने फरमाया, कैसे मैं खुशी महसूस न करूं? आज रात मैंने जन्नत की सैर की, आज रात मैंने जन्नत की सैर की। उसमें जाफिर को देखा कि वो फरिश्तों के साथ जन्नत के बागों में उड़ रहे हैं। जब अपने चचा को देखा तो बुलंद मसनद पर बैठे, तकिया लगाए बैठे हैं। नारे तकबीर, और से कहो अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बयान करूं वो अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने किस तरह से कुर्बानी पेश की। उस ओहद में और भी ऐसी लाशें थीं जिनके जिस्म के टुकड़े हुए। उनमें एक बूढ़ा सहाबी भी था, उनमें एक लंगड़ा सहाबी भी था, उनमें एक रात का शादी करने वाला सहाबी भी था। उस ओहद में खूबसूरती का गुलदस्ता है, कोई कौम में सरदार है, कोई ऐसा है जो एक रात की दुल्हन के साथ, निकाह के साथ, उसके साथ मुजामत करता है, सुबह को जिहाद में उसी ग़ज़वा उहद में शहादत हासिल करता है। वो हंज़ला थे जिनको मलाइका गुस्ल दे रहे थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के फूफीजाद भाई थे, उनके भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश को और अमीर हमजा की लाश को इकट्ठा दफना दो कि मामू और भांजा दोनों एक ही कब्र में जन्नत में चले जाएंगे। दोनों मामू भांजा थे। हजूर का एक फूफीजाद बेटा फूफीजाद भाई हुआ और दूसरा आपका चचा, तो उनका आपस में रिश्ता क्या हुआ? मामू और भांजे का हुआ। जरा रिश्तों को भी देखें, मामू और भांजा एक ही कब्र में दफना दिए गए। आप ओहद में जाते हैं, आप वहां पर उन शुहदा को सलाम करते हैं। मेरे दोस्तों, उनमें वाज़ेह और खुली तौर पर जो कब्रें पड़ी हैं, उनमें 3 आपको नजर आ रही हैं निशान। उन तीनों में अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन जहश एक कब्र में हैं और दूसरी कब्र में हजरत मुसअब बिन उमैर हैं, जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी, जिनकी शहादत पर यह ऐलान कर दिया गया था कि रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यह शहादत रसूलुल्लाह को भी मतलूब थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए, सब नबियों के सरदार बनकर आए, इमामुल अंबिया बनकर आए, साहिब शफाअत बनकर आए, साहिब यानी साकी कौसर बनकर आए और रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। सारी चीजें अल्लाह ने अता फरमाई। फिर भी रसूलुल्लाह को एक ख्वाहिश रहती थी, मेरे अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने रास्ते में शहादत भी अता फरमा। ये दुआ करते थे,
تیرے راستے میں شہید تھے، تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر بتاؤ کتنے بار کہا؟ اللہ کہو، اللہ اکبر۔ یہاں یہ تڑپ بتا رہی ہے کہ تم نہیں سمجھتے کہ شہادت کا کیا مقام ہے، اگرچہ نبوت سے کم مقام ہے، لیکن کیا ملے گا؟ نبی کو سب کچھ ملے گا، لیکن اس خواہش پر بھی یہ مرتبہ بھی لینا چاہتے تھے۔ اس لیے یہودیوں نے جب زہر دی تھی، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام شہادت بھی عطا فرما دیا تھا۔